Hey guys, so yes, in before two classes which we had discussed, that was some various methods to fit a curve. So in those past two videos, we had discussed type 1, that is using a straight line how to fit a curve, and type 2 was using a second degree parabola equation, that is y is equal to ax square plus bx plus c. Okay, now this is type 3. So type 3 is nothing but type 3 is this form, y is equal to ax power b. So using this form we need to fit a curve. So the procedure remains same for even this type. So what we have done for those past two types, so even the procedure remains same for this. Okay, so nothing but we just need to take log on both sides, then according to the logarithmic property we need to simplify it. Then so this in this type also there will be normal equation, there will be only two normal equations which with subtle slight differences, but in type 2 there was three normal equations, and in type 1 only two equations, the normal equations. Now here also there exist only two normal equations, and in those two normal equations there exist some variables which we need to find using a table. After finding, after simplifying the table, we'll get some those variables. Those variables are we are supposed to substitute in those normal equations, and then we are going to get, using our scientific calculator, we are going to get our a and b values, which we need to substitute in the final form value to in order to get the equation of y. Clear? Okay, so let's start. So first is we have consider, see, consider this equation. You need not to worry this, the type 1, type 2, type 3 questions will be given in question itself. Like if it is type 1, then they'll be give this they'll give straight line equation. If they're type 2, they'll give the parabola equation. If type 3, they'll give directly this equation. Clear? Okay, now consider this ax plus b. As I said, put log on both sides, put or apply logarithmic function on both sides, then we are going to get log y and this log a x power b. So we know that log a into b is, a into b is, or you can take m into n, log m into n is log m plus log n. If you don't know this property, note it down. Okay, this is a standard formula. Okay, log y is equal to, now this is m, this is my n, so I can write log a plus log b, is it? Okay, so and after that log, and also we know that log m power n is equal to n into log m. So we don't have any derivation or any proof for these standard equations, just you need to remember it. Okay, so log, whenever you it encounters any m power n, then you should write it as n into log m, that is this power will come here and this will be the equation. So if we apply same for this, then what will be our equation? Log y is equal to log a plus this b comes here, b log x. Clear? So okay, so now we have an standard equation similar to our straight line equation, ax plus bx. So this is my standard equation. These are the steps how to solve this problem. You should remember these formulas. Okay, so in every till here, not till here, wait. Okay, so now this is a formula you need to remember, so that you need to compare it with this. Okay, ठीक है, आपको कंपेयर करना होता है इससे. ठीक है, अब y के जगह पे क्या है? ठीक है, log y है, तो लिख लीजिए in place of capital Y we have log small y, and then next in place of a we what we have, log
ए, ठीक है ना। नाउ बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, नीड नॉट वरी, लीव इट। एक्स की जगह पर क्या है, कैपिटल एक्स की जगह पे लॉग स्मॉल एक्स है, ठीक है। तो वैल्यूज़ जिस जिस की जगह पर जो जो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती थी उसके बराबर हमने इक्वल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक ठीक है। इसके बाद अब हम कंसिडर करते हैं अपना हम कंसिडर करेंगे अपने नॉर्मल इक्वेशंस। तो जैसे मैंने कहा था कि हर एक टाइप में अलग अलग नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। ओके, सो ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपनी वैल्यूज़ को उनके रेस्पेक्टेड वेरिएबल्स में इक्वल्स कर लिया है। नाउ यहाँ पे आते हैं न्यू नॉर्मल वेरिएबल्स, सॉरी नॉर्मल इक्वेशंस। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हर एक टाइप में अलग अलग नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी टाइप 3 में यहाँ पे सिर्फ 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं, लेकिन थोड़े अलग हैं टाइप 1 और टाइप 2 से, ठीक है। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, एंड सेकेंड वन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टाइप 3 में आपको ध्यान देना है कि कौन सा वेरिएबल कैपिटल है और कौन सा वेरिएबल स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए कैपिटल ए ही है, क्योंकि कैपिटल ए और स्मॉल ए में थोड़ा डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, टाइप 3 में, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 में इसकी कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत है कि कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्मॉल बी एंड सिग्मा कैपिटल एक्स एंड सिग्मा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू सिग्मा कैपिटल एक्स प्लस बी इंटू कैपिटल बी इंटू सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और हमारा जो पहला इक्वेशन था इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। और अब हमें पता है कि आगे का प्रोसीजर क्या है। हमें निकालना है सिग्मा वाई और निकालना है सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3 हमने निकालने हैं और हम अपने टेबल की मदद से, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं हम अपना टेबल, कंसिडर दी टेबल, ठीक है ना। तो हमें जो जो भी वैल्यूज़ दिए गए हैं, पहले तो एक्स एंड वाई, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे देखिए, अगर हमने सो इफ़ वी वांट टू फाइंड दी सिग्मा वाई वैल्यू वी नीड कैपिटल वाई वैल्यू, ठीक है। एंड इफ़ वी नीड कैपिटल वाई वैल्यू वी नीड टू फाइंड लॉग वाई वैल्यू, ठीक है। आई बात समझ में कि पहले अगर हमें चाहिए सिग्मा वाई, उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा ये कैपिटल वाई, लेकिन अब कैपिटल वाई को फाइंड करने के लिए हमने हर एक वाई वैल्यू को लॉग में डालकर सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड करना होगी, और तब हमें मिलेगी सब रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ की कैपिटल वाई वैल्यूज़, और उसको जब हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा वाई वैल्यू। तो सिमिलर प्रोसीजर फॉलोज फॉर कैपिटल ए एंड कैपिटल एक्स, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड दिस, ओके। पहले तो जो हमें गिवन है वैल्यू वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एंड नाउ वाई 0.5 2 4.5 8 12.5, ठीक है ना। एंड प्लीज़ spare me for my handwriting, I'm not good at writing, so please if you have any query then you can comment me. Okay, so now first I need what I need, first I need y value. So if I want to have y value, if I need to find y value, then I need to find first log e, log base e y, ठीक है, कैपिटल स्मॉल वाई। इसलिए मैंने कहा था कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में डिफरेंस होता है टाइप 3 में, ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि
ये कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे सीधे जाकर जो यहाँ पे लॉग होता है उसको दबाते हैं। यहाँ पे यहाँ लॉग है, लॉग कर लिया, और y की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो में 0.5 है, तो 0.5 लेकर के लॉग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू आ भी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं निकालना होता है। ठीक है, जब कभी भी आपको लॉग आता है तो आप अपने कैलकुलेटर में लैन का इस्तेमाल करना है, ना कि लॉग का। ठीक है ना। तो जब कभी भी यूजुअली 90% हम लैन को ही यूज़ करते हैं, लॉग को यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो वी हैव टू यूज़ लैन ऑफ 0, फर्स्ट वैल्यूज़ 0.5। सो पुट कर दीजिए इसमें और आ जाएगी आपको। ठीक है, जितनी भी वैल्यू आ जाएगी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। सेकेंड वैल्यू आती है 2, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, सॉरी। देन आ जाएगी आपको सेम, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने एंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप बस इसी तरह से इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, सो दैट वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, 2.04 2.5257। ठीक है, ये होगा मेरा y की वैल्यूज़। ठीक है, और नेक्स्ट अब मुझे निकालनी है x, सो दैट आई नीड, जैसे कि मैंने कहा आपको कि मुझे सिग्मा x अगर चाहिए तो पहले मुझे x चाहिए होगा। अगर x चाहिए तो पहले log x को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वही मेथड हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। लॉग और जब कभी भी लॉग सिंगल होता है तो लॉग, इसका मतलब है कि इट्स अंडरस्टूड दैट यहाँ पे बेस में ई होगा ही होगा। लॉग कभी भी अकेला नहीं होता, उसके बेस में ई होगा ही होगा। इन केस अगर वो लोग अपने से दे दें कि लॉग बेस 10 या लॉग बेस 2, जो भी दे दें वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो हमने ये मान लेना है कि यहाँ पे ई है, लॉग बेस ई। ठीक है, लॉग बेस ई, यहाँ पे स्मॉल एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालनी है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो में 1 है, तो यहाँ पे लीजिए लैन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो एंटर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो लैन ऑफ 2 डालिए, इसमें एंटर कीजिए। सॉरी, यहाँ पे अगर मैंने 2 डाल दिया तो आ गया कि जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे एंटर कर लीजिए 0.6931। तो ये भी आप अपने खुद से कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ अपने वैल्यूज़ 0.986, 1.3862, 1.6094। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा x। नाउ वी नीड टू फाइंड, अब यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स पेंडिंग है जो फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्स वाई आ गया और एक्स सिग्मा एक्स आ गया, और बचा है सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले फाइंड करते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखा है। थोड़े बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 में करते थे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इंटू करके यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की है, तो आफ्टर evaluating this only you can find out this. Capital X into capital Y is nothing but multiply these two, write here value, multiply these two, write here, multiply these two, write here. Similarly मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, so 0.4803, 1.6522 and 2.8824, 4.048। ठीक है, यहाँ पर आ गई मेरी। तो नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होगा पहले, सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होगा क्या, पहले एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, कैसा होगा, एक्स स्क्वायर कैसा करते हैं, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के कॉलम में जो भी नंबर आएंगे उसको स्क्वायर कर लेना है। तो 0 का स्क्वायर होगा 0, और इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे, तो ऑलरेडी मैंने करके रखा है। ठीक है, 0.4803, तो इसका स्क्वायर आके वो 1.2069, तो एंड इसका स्क्वायर 1.9215 एंड इसका स्क्वायर 2.5901। ठीक है, चलिए अब हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं टेबल में। नाउ अब जो हमें चाहिए, सभी के सिग्मा वैल्यूज़ चाहिए। तो किस चीज़ के सिग्मा वैल्यूज़ चाहिए, सिग्मा कैपिटल वाई की वैल्यूज़ चाहिए हमें,
और सिग्मा कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, और नेक्स्ट सिग्मा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू चाहिए, और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, वो तो पता है आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा वाई की अगर वैल्यू चाहिए तो तमाम कॉलम के वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, जो ऐड करके फाइनल नंबर आएगा वो होगी आपकी सिग्मा वाई, एंड सिग्मा एक्स की वैल्यू जो कॉलम के वैल्यू रेस्पेक्टेड वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लेते हैं, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है, तो सिग्मा वाई की वैल्यू है 6.1091, ठीक है ना। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 4.7873, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 9.0797, और सिग्मा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 6.1988। तो सिमिलरली अब ये वैल्यूज़ आ चुके हैं, तो ये वैल्यूज़ लेकर हम अपने नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर देंगे, और उसके बाद सही कैलकुलेटर की मदद से हम ए और बी की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले आता है इक्वेशंस में सिग्मा वाई की वैल्यू। सिग्मा वाई की वैल्यू कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे है 6.1091 इज इक्वल टू, यहाँ पे है n इंटू ए, एज मैंने कहा था n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जितने कॉलम हो गया होंगे आपके पास उतने नंबर का ही होगा हमारा n। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5, तो 5 n की वैल्यू होगी 5, और a हैज़ इट इज़, तो नेक्स्ट कैपिटल स्मॉल b है, ध्यान से स्मॉल b है यहाँ पे, और सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे 873। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आएगा आपका सिग्मा एक्स वाई इज़ यहाँ पे 9.0797 इज इक्वल टू ए है, ए हैज़ इट इज़, ए हैज़ इट इज़ लिख लीजिए, और नेक्स्ट है सिग्मा एक्स की वैल्यू है 4.7873। नेक्स्ट आएगा हमारा बी हैज़ इट इज़ लिख लीजिए, और नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 6.1988। तो जैसे कि मैंने पास्ट के 2 वीडियोस में बताया था कि आप कैलकुलेटर की मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जाइए मोड सेटअप में प्रेस कीजिए इक्वेशन 5, और यहाँ पे देखिए जितने इक्वेशंस हैं हमारे पास 1 2 3, सिर्फ 3 है, तो देखिए कहाँ पे 1 2 3, तो नंबर दबाइए 1, और यहाँ पे चलिए शुरू हो जाइए। तो पहला आता है ये 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ऐसा ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो नंबर क्या है फर्स्ट में 5 है, तो 5 एंटर कीजिए इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है नंबर 4.7873, सो 4.7873, ठीक है, इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, नेक्स्ट इक्वल्स टू ये नंबर है 6.1091, ठीक है ना, ओके, तो इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, नेक्स्ट ये लाइन को आपने एंटर करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट आपका क्या है 4.7873, ठीक है ना, इज इक्वल टू नेक्स्ट 6.1988 एंटर कर लीजिए, नेक्स्ट 9.0797, ठीक है। तो अब आपकी जो पहली वैल्यू आएगी वो होगी आपकी कैपिटल ए की वैल्यू, ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई -0.6932, ठीक है, और नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी आपको वो होगी, इसमें वही होगी लेकिन यहाँ पे स्मॉल b की वैल्यू, ठीक है, 2.00। लेकिन क्या हम ये दो वैल्यूज़ को लेकर हमारे मेन इक्वेशंस में डाल सकते हैं? नहीं, हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई लेकिन स्मॉल a की वैल्यू अभी भी नहीं मालूम है हमें, ठीक है। तो अब ये स्मॉल a की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और वो फाइंड कैसे कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे हमने मान लिया था कि a इज इक्वल टू लॉग स्मॉल a है, तो अगर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग को इस साइड भेज दीजिए, दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट, लॉग को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लॉग ई हो जाएगा, लॉग इधर है लेकिन अगर वो इधर ट्रांसफ़र होगा तो वो ऑटोमेटिक ई बन जाएगा, और ये जो ए है उसके सर पे आ जाएगा। ये एक्चुअली लॉग की एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे बचेगा ए, ठीक है। अब जो भी ए की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट इज़ अब हमारा स्मॉल ए निकालने के लिए हमें ई पावर ए कैलकुलेट करना होगा, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू ई पावर ए की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है -0.6932। तो फिर से कैलकुलेटर निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऐसा
ई पावर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट दबाइए और लैन को दबाइए तो आ गया आपका ई पावर फॉर्म। ठीक है, ई पावर के फॉर्म में क्या है, ई पावर समथिंग में -0.6932 है, -0.6932 और दबा प्रेस कीजिए इक्वल्स टू, देन आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू 0.499, लेकिन मैं लिखूँगा अप्रॉक्सीमेटली 0.5। तो क्या अब हम ये ए और बी की वैल्यूज़ को अपने जनरल फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए एक्स पर बी। तो अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की वैल्यू 0.5, एक्स पावर बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें। अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड अगर if any sort of queries you have, then please you can clarify by commenting, ठीक है। and please if you like this video, please support me and subscribe my channel. So thank you, we'll meet up in the next lecture. Okay, bye.